Structure and stability of conjugated diene system, यानी संयुग्मित एल्काडाइन की संरचना एवं उसका स्थायित्व की बात करते हैं। So 1,3-butadiene is the simplest example of conjugated diene. By taking this, we can explain the stability of conjugated diene system. यानी 1,3-butadiene संयुग्मित डाइन का एक सरलतम यौगिक है। इसका उदाहरण लेकर हम उसकी संरचना, उसका स्थायित्व को समझा सकते हैं। Structure of 1,3-butadiene conjugated diene system. In but-1,3-diene, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2, which is but-1,3-diene, all the 4 carbon atoms are in the state of sp2 hybridization. In all 3 sp2 hybridized orbital, each carbon atom is present on the same plane with bond angle 120 degree, and each carbon atom has one unhybridized p orbital which is perpendicular to plane as shown in this figure. So C1, C2, C3 and C4. These are the 4 carbon. चारों कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में प्रत्येक कार्बन परमाणु के तीनों sp2 संकृत कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर विन्यासित होते हैं और प्रत्येक परमाणु का एक असंकृत शुद्ध p कक्षक इस तल के लंबवत होता है। Generally, 1,3-butadiene is shown by structure given below, in which C1 and C2, यानी ये दोनों की बात कर रहे हैं, and C3 and C4 have double bond, and C2 and C3 have a single bond. यानी C1 और C2 जो हैं जनरली वो डबल बॉन्ड है, C3 and C4 के अंदर डबल बॉन्ड है, बट इन बिटवीन द C2 and C3 हैविंग द सिंगल बॉन्ड, C2 और C3 के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। So unhybridized p orbital of C1 and C2 and C3 and C4 overlap collaterally. It forms bicentered pi molecular orbitals. C1 C2 और C3 C4 पर उपस्थित असंकृत p कक्षक परस्पर पार्श्व अतिव्यापन करके द्विकेंद्रिक पाई आणविक कक्षक बना लेते हैं इस तरह से। In but-1,3-butadiene, C2 and C3 are too much close to each other that unhybridized orbital of C2 and C3 may overlap. This overlapping is less in comparison to C2, C1 and C3 and C4. So it is due to overlapping of p orbital of C2 and C3, partially double bonds character is developed in it. यानी 1,3-butadiene में C2, C3 भी इतने नजदीक हैं कि C2, C3 पर उपस्थित असंकृत p कक्षक भी अतिव्यापन कर लेते हैं और यह अतिव्यापन इतना अधिक नहीं होता जितना कि C1, C2 और C3, C4 के मध्य उपस्थित होता है। C2 और C3 पर p कक्षकों के कुछ मात्रा में अतिव्यापन से C2, C3 के मध्य बंध में आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। इट इज पार्शियल C1, C2 और C3 के बीच में C2 और C3 के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाते हैं और चारों पाई इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन परमाणु पर डीलोकलाइज हो जाते हैं। जिस तरह से बता रखा है तो पाई बॉन्ड है, ये चारों कार्बन पर क्या हो रहा है, आपके पास डीलोकलाइज हो रहा है। तथा एक चतुकेंद्रिक पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है जैसे यहाँ है, जिसके कारण 1,3-butadiene विलगित एल्काडाइन से अधिक स्थायी होता है। इन 1,3-butadiene is assumed to be resonance hybrid of the following structure, second and third, यानी सेकंड स्ट्रक्चर को देखेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर को देखने पर dotted line shows, these are the dotted line, this one shows that each carbon atom one electron is of opposite spin is present which gets paired. Structure third, this one shows double bond character in between the C2 and C3 in both the structures. Structure second is more stable because of 11 bonds are present. इनकी बात कर रहे हैं। In structure third, 10 bonds are present is due to the formation of one extra bond, energy is released which shows the extra stability of structure second. यानी बिंदुधर रेखा द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि C1 तथा C2 प्रत्येक पर एक इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के जो युग्मित हो जाते हैं। संरचना थर्ड C2 और C3 के बीच आंशिक द्विबंध लक्षण प्रदर्शित करते हैं और दोनों संरचनाओं में संरचना द्वितीय जो है सेकंड वाली अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें 11 बंध है और संरचना 3 में कुल बंध 10 है। अतिरिक्त बंध बनने से ऊर्जा मुक्त होती है जो स्थायित्व को प्रदर्शित करती है।
इस प्रकार संरचना जो है इन दोनों के अंदर अगर देखें तो संरचना सेकंड जो है वो थर्ड से काफी ज्यादा अधिक स्थायी है। इन 2 pi electrons are present in pi 1 MO and 2 pi electrons are present in bonding pi 2 MO. These pi bonding MO and pi star anti-bonding molecular orbital can be represented as follow. तो इसके अंदर ये देख लेते हैं कि पाई 1 जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव वाले रहेगा। नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रह गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव रह गया, और ये दोनों जो है ऊपर वाले में पॉजिटिव नेगेटिव वाले में रहेंगे और ये पॉजिटिव रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखें, ये संरचना इस तरह से आएगी। ये रहेगा पाई 1 के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल में और ये पाई 2 के लिए। इस तरह की संरचना हमें प्राप्त हो जाती है।